آج یہ دور جہالت شروع ہو گیا ہے، لوگ گمراہیوں کے اندر پڑ گئے ہیں، ادھر میت ہوئی، ادھر انسان ختم ہوا، ادھر دفنانے کی جلدی ہو گئی، دفنانے کے بعد دعا کرنے کی جلدی ہو گئی، دعا کیا اور کام ختم۔ بعض لوگ تو قبرستان میں کام ختم کر کے آ جاتے ہیں، بعض لوگ 3 دن بیٹھتے ہیں، صرف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ حدیث پاک میں لکھا ہے، اللہ کے نبی نے 3 دن شوق منانے کا حکم دیا، اس لیے بیچارے مجبوراً بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کے کرتے کیا ہیں؟ گپے شپے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سگریٹیں پی جا رہی ہے، بیڑیاں پی جا رہی ہے، پڑیاں کھائی جا رہی ہے، چائے پی جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں اس بیٹھک کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بیٹھنے کا حکم دیا، شوق منانے کا حکم دیا، تو اس کے اندر حکم یہ تھا کہ مردے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کیے جائیں۔ اللہ اکبر! مردے کو جیسے ہی قبر میں رکھ کے آپ 40 قدم چلتے ہیں، فرشتے منکر نکیر اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی سوال و جواب کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم آزاد ہو گئے، روح جسم سے نکلتے ہی ہم آزاد ہو گئے۔ میرے بھائی ابھی تو اصلی امتحان شروع ہوا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ، میت آپ کی نہیں ہے، مرنے والا آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا، صحابہ میں اس قبر کو دیکھ کے ڈر رہا ہوں، اس آخری گھر کو دیکھ کے ڈر رہا ہوں جس کے متعلق میرے رب نے فرمایا کہ یہ تمہارا اصل گھر ہے، مرنے کے بعد تمہارا یہی اصلی گھر ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ انسان کے اعمال پر نربھر کرتا ہے، جیسے اعمال آپ قبر میں لے کے جاؤ گے ویسا قبر آپ کا سواگت کرے گی۔ اگر اچھے اعمال لے کے جائیں گے تو قبر آپ کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اگر برے اعمال کر کے جائیں گے تو قبر آپ کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گی، آپ کی پسلیوں کو ادھر سے ادھر نکال دے گی، آگ کے شعلے قبر میں بھڑکا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو بزرگوں، ذرا سمجھیے، مردے کو مرنے کے بعد بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے، اگر قبر میں عذاب ہو تو عذاب جھیلنا پڑتا ہے، لہٰذا اس عذاب سے بچانے کے لیے ہم اس سے زیادہ ایصال ثواب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی شے ہیں، جتنی چیزیں، جتنی وستو ہیں، ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اسے قبر میں راحت ہو۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں بزرگوں، ہم 3 دن میں سارا معاملہ سلٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک آپ کا باپ ہے یا دادا ہے، جو بھی ہے، اس نے 70-80 سال ان اولاد کے لیے، اس گھر کے لیے اپنی زندگی کو، اپنے خون کو، اپنے پسینے کو لگا دیا، اور بدلے میں ہم نے اسے کیا دیا کہ 3 دن میں بس فارمیلٹی کی قرآن خوانی کر دی، بچوں کو کھانا کھلا دیا اور سارا کام نپٹا دیا۔ اللہ اکبر! 3 دن کے بعد تو آقا فرماتے ہیں کہ اس کی اصل پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج لوگ 40ویں سے بھاگ رہے ہیں، آج لوگ 40ویں کو چھوڑ رہے ہیں، 40ویں سے بھاگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیارو، تم نے 40ویں کو چھوڑ دیا، لیکن 40ویں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر! کیونکہ 40 کا جو عدد ہے وہ عدد تمام ہے، یعنی مکمل تب ہی ہوتا ہے کوئی بھی کام جب 40 کا عدد پورا ہوتا ہے، تو یہ عدد تمام ہے۔ اللہ اکبر! پیارے، تم لوگ 40 کو چھوڑ سکتے ہو، تم نے 40 کو چھوڑ دیا ہوگا، لیکن 40ویں نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد مردے کا جسم گلنا شروع ہوتا ہے، گنہگار بندے کا جسم گلنا شروع ہوتا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی ناک سے سب سے پہلے اس کی ناک پھٹتی ہے، ناک سے گودا باہر آتا ہے، پھر اس کا بھیجا جو ہے نا، یہ ہمارا دماغ ہے، بھیجا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے، اس کا کچرا ہو جاتا ہے اور یہ کانوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پیٹ کی جو چیزیں ہیں وہ منہ کے ذریعے باہر نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے، جسم کا گوشت گلنے لگتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 40 دن ہوتے ہوتے بندے کا تمام جسم گل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر میں کیڑے پیدا کر دیتا ہے، وہ کیڑے اس کے بدن کے گوشت کو کھا جاتے ہیں، اس کے چہرے کو، جس چہرے کو ایک نئی کریمیں لگا کر کے سجا رہے ہیں، جن بالوں کو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے سجا رہے ہیں، اس جمعہ کو یہ کٹنگ کروا لیے، اگلے جمعہ کو یہ نئی کٹنگ کروا لیے، اگلے جمعہ کو اس سے اسٹائل والی کٹنگ کرا لی۔ اللہ اکبر! قبر میں یہ تمہارے بال، یہ تمہارا چہرہ چند دنوں کے اندر، 40 دنوں کے اندر کیڑوں کی خوراک بن جاتا ہے، کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ
कब्र में कीड़े पैदा कर देता है। वो कीड़े उसका गोश्त, उसका चेहरा, पोस्ट सब खाने लग जाते हैं। हत्ता कि आका ने फरमाया 40 दिन गुजरते गुजरते वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचता है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमने 3 दिन में उसे भुला दिया। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी हमारे लिए खराब कर दी, पूरी जिंदगी उन बाल बच्चों के पालन पोषण करने के अंदर गुजार दी, उसे हमने 3 दिन में रफा दफा कर दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के आका ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाए तो अहले खाना, उसके वारिस जो हैं वो थोड़ी देर कब्र के पास रुके, क्योंकि मुनकर नकीर आते हैं, सवालो जवाब होता है, मुर्दा घबराता है। लेकिन जब उसका कोई करीबी उसके पास बैठा हो तो मुर्दे को राहत पहुंचती है, मुर्दे को सुकून पहुंचता है। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया वारिस जो है वो कब्र के पास बैठे, कुरान की तिलावत करे। और यहाँ तक फरमाया सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतों को जो चारों तरफ खड़े होकर के पढ़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उन आयात के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देता है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे मुर्दों की मग़फ़िरत हो जाए, लेकिन तुम गुमराह फिरकों के अंदर पड़े हुए हो, गुमराह लोगों की बातों में आकर के न कब्र के पास रुक रहे हो, न कब्र के पास तिलावत कर रहे हो, न 40वां करा रहे हो, न तीजा करा रहे हो, न फातिहा करा रहे हो। तुम तो 3 दिन की फॉर्मेलिटी करते हो, अल्लाह अकबर, उसके बाद भूल जाते हो। लेकिन कब्र में मुर्दे को तो 40 दिन तक तकलीफ पहुंचती है, 40 दिन तक मुर्दा तकलीफ के अंदर रहता है। अल्लाह अकबर। वो ईसाले सवाब का इंतजार करता है। क्या पता हमारे ईसाले सवाब करने की वजह से, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये जो हालत में आका ने बताई है ये गुनहगार मुर्दे की है। गुनहगार मुर्दे के जिस्म को चीर दिया जाएगा, फाड़ दिया जाएगा, कब्र उसके साथ बदसलूकी से पेश आएगी। लेकिन जो नेक लोग होते हैं, आज भी आप न्यूज में खबरों में देखते हैं, कहीं कोई बारिश की वजह से कोई कब्र खुल जाती है, लेकिन उसका कफन नजर आता है और वो मुर्दा जो सैकड़ों साल पहले गुजर चुका है, आज भी उसका लाशा सलामत है। अल्लाह, सैकड़ों साल से वो कब्र के अंदर है, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह जब चेहरा खोलकर देखा जाता है तो लगता है आज ही दफनाया है। कफन भी उसका सलामत है। जो मोहम्मद के गुलाम होते हैं उनका सिर्फ जिस्म सलामत नहीं होता, उनका कफन तक सलामत होता है। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर मैयत की बख्शिश हो गई है तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन अगर मैयत की बख्शिश नहीं हुई, क्योंकि हमें तो कोई पता नहीं चलता ना, हमें तो कोई मैसेज नहीं आता, हमें तो कोई गैबी खबर नहीं आती कि तुम्हारे मुर्दे की बख्शिश कर दी गई है, अब तुम बैठक लगाना बंद कर दो, अब तुम जो है नज़्व नियाज फातिहा तीजा बंद कर दो, 40वां बंद कर दो, अब तुम उसके लिए इसाले सवाब ना करो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें पता नहीं है, तो ये हमारा हक बनता है कि जिस आदमी ने हमारे लिए अपनी जिंदगी को खराब किया, अपनी जिंदगी के पूरे लम्हात हमारे हवाले कर दिए, क्या हम उसके लिए 40 दिन तक इसाले सवाब नहीं कर सकते? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 40 दिन तक एक जगह बैठे रहिए, आप जाइए अपना काम भी कीजिए, लेकिन 40 दिन तक उस मुर्दे को कम से कम याद तो रखिए, उसके लिए कुछ पढ़ते रहिए, रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ के उसके लिए इसाले सवाब कीजिए। शुरू के 40 दिन मेरे भाइयों मुर्दे के लिए बहुत तकलीफ दे होते हैं। इन 40 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा मुर्दे के लिए इसाले सवाब करना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज आप 40वें से भाग रहे हैं। 40वां दिन जो होता है ना, 40वां जो आखिरी दिन होता है मुर्दे का, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी हालत को तब्दील कर देता है। आप बात को समझिए, 40वें दिन हम 40 दिन तक उसके लिए इसाले सवाब करते रहे। जब अल्लाह तबारक व तआला, अरे जब एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से जब बेटे ने एक मदरसे में जाकर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाप की कब्र से अजाब उठा लिया। फरिश्तों ने कहा, मौला अजाब क्यों उठा लिया? कहा, तुम देखते नहीं, इसका बेटा मदरसे में जाकर मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, तो जिसकी औलाद मुझे रहमान और रहीम कहे तो मुझे गवारा नहीं कि मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी ताकत है, तो सोचिए जब एक बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने कब्र में मुर्दे को राहत दे दी, अजाब उठा लिया, तो जो 40 दिन अल्लाह का कलाम पढ़ता रहे, कलमे का विर्द करता रहे, वजीफे पढ़ते रहे, अपने मुर्दे को इसाले सवाब करते रहे, तो 40वां दिन जिसके बारे में आका ने फरमाया कि 40वें दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे के हक में फैसला कर देता है। अल्लाह अकबर। क्या पता अल्लाह ताला उस पर रहमत का नुज़ूल कर दे, उसे बख्श दे, क्या पता वो अजाब के अंदर मुब्तला हो। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करेंगे, कुरानी आयात पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, 40वें को हमने छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं छोड़ा। आप कहेंगे हजरत अल्लाह भी 40वां करता है। हमने कहा तू मरने के बाद 40वां नहीं करता, लेकिन तेरे पैदा होने से पहले अल्लाह ने तेरा 40वां कर दिया। तवज्जो। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी उठा करके लाओ, जमीन से मिट्टी उठा करके लाई गई आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को तैयार करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इसे एक जगह रख दो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 39 दिन तक
आदम के खमीर पर 39 दिन तक आदम अलैहिस्सलाम के खमीर पर दुखों की मुसीबतों की बारिशें की और एक दिन मात्र 40वें एक दिन अल्लाह ने खुशी की बारिश की। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमारे खमीर पर 40वां पढ़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमारे खमीर पर, हमारी मिट्टी पर 40वां पढ़ दिया। आप कहते हैं मरने के बाद 40 दिन नहीं निकालूंगा, मरने के बाद 40 दिन तक इसाले सवाब नहीं करूंगा। अल्लाह ने तो तेरा 40वां कब का पढ़ दिया। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर पर उन 40 दिन तक दुखों की, मुसीबतों की, तकलीफों की बारिश हुई, एक दिन सिर्फ खुशी की बारिश हुई। इसलिए मुसलमान ज्यादातर तकलीफ में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। क्यों? सूफिया किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इसलिए किया कि जब बंदा तकलीफ में होता है, परेशानी में होता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है, अल्लाह को ज्यादा याद करता है। हालांकि अल्लाह फरमाता है खुशी में, गम में, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वाले को पसंद फरमाता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारा 40वां तो पैदा होने से पहले शुरू हुआ। आदम से आदमियत चली, तो आदमियत का, आदम का 40वां तो सबसे पहले मेरे रब ने पढ़ा है। फिर आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला जब माँ के पेट में बच्चे का नुत्फा देता है तो फरमाया कि जब नुत्फा करार पकड़ता है तो 40 दिन तक रहता है। जब नुत्फा करार पकड़ता है 40 दिन तक रहता है। फिर 40 दिन के बाद वो खून का लोथड़ा बनता है। फिर 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की शक्ल बनाता है। 40 दिन के बाद चेहरा बनता है। 40 दिन के बाद जिस्म के और आज़ा बनते हैं। 40 का प्रोसीजर चल रहा है। 40 दिन बाद अल्लाह तबारक व तआला माँ के पेट में उस बच्चे में रूह फूंक देता है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, देखिए अल्लाह पैदा होने से पहले अल्लाह ने बंदे का 40वां कर दिया। माँ के पेट में न जाने कितनी मर्तबा अल्लाह ने बंदे का 40वां कर दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप 40वें को नहीं छोड़ सकते, आप 40वें को छोड़ सकते हैं, 40 ने आपको नहीं छोड़ा है। और फिर आगे देखिए कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो 40 दिन से पहले घर वाले उसे बाहर निकालते हैं। 3 दिन में निकाल के ले आते हैं, 2 दिन में हटा देते हैं। नहीं, 40 दिन तक उसे घर में रखा जाता है और उसकी माँ के करीब रखा जाता है। 40 दिन तक उसे बाहर नहीं लाते हैं। फिर पैदा होते ही उसका 40वां हम बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर। कहाँ बचोगे 40 से? और आगे आ जाइए। अल्लाहु अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब 3 दिन के बच्चे थे तब आपने लोगों के सामने अलल ऐलान कह दिया कि मैं नबी हूँ। लेकिन फिर बाद में आप वाकई में जब नबूवत की हालत में आए तो वो 40 साल का अरसा आपका बीत चुका था। 40 साल के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने खुलकर नबूवत का दावा किया। और आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहे। 40 दिन के बाद अल्लाह ने आपको रिहाई अता फरमाई। कहाँ बचेंगे 40 दिन से? अल्लाह ने नबियों को 40 दिन के अंदर रखा है, नबी 40 दिन के हक में है। अल्लाहु अकबर। कहाँ बचेंगे 40 दिन से? और आगे आइए, मुखबिर सादिक़ कायनात हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। यूं तो आप पैदाइशी नबी थे, लेकिन अलल ऐलान खुल के लोगों के सामने 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। तो 40 का अदद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हम आज 40 से पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन 40 का अदद हमारा पीछा नहीं छोड़ा। और आगे आइए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन फैलाना शुरू किया, अभी लोग छुप के नमाज पढ़ रहे हैं, छुप के दीन की तबलीग हो रही है। 39 मुसलमान हुजूर के साथ हो गए। कहते सुभान अल्लाह। 39 मुसलमान हुजूर के साथ हो गए हैं। 11 औरतें हो गई, 39 आदमी हो गए हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन अब प्रोसीजर रुक गया है, अब काम रुक गया है। और कितने दिन रुका है? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 6 साल लग गए। पूरे 6 साल तक सिर्फ 39 मुसलमान हैं, 11 औरतें हैं। प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुफार ने पूरा जो है अटैक कर रखा है। कुफार मुसलमानों के ऊपर हावी हो रहे हैं। मोहम्मद अरबी को दीन की तबलीग नहीं करने दे रहे हैं, 40वां नहीं करने दे रहे हैं। और कुफार के अंदर सबसे आगे कुफार ने किसे कर रखा है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मक्का के डॉन हुआ करते थे। कुफार ने उन्हें आगे करके रखा। उमर भी कोशिश कर रहे हैं, कुफार भी कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद के 40 मुसलमान पूरे नहीं होने देंगे, 40 साथी पूरे नहीं होंगे। अब आप ये देखिए, काफिरों को भी पता था कि 40 का जो अदद है वो अदद तमाम है। अगर मोहम्मद अरबी के 40 साथी हो गए तो फिर इस दीन को फैलने से कोई नहीं रोक सकता, इस दीन को फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कुफार पूरा जोर लगा रहे थे कि 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। इसलिए 6 साल का वक्त गुजर गया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, 40 होने से पहले पता चला कि तकलीफें आ रही हैं, परेशानी आ रही है। लेकिन जब 40 का अदद पूरा हुआ, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाए रब्बे कदीर की कुदरत पर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए उमर, तू कहता है 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, मैं 40वां मुसलमान ही तुझे बनाऊंगा, मैं 40 का अदद तुझसे ही पूरा करूंगा। लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो वाकया आपने सुना होगा, बहन के घर गए, बहन को मारा
पीटा और फिर जब दिमाग ठंडा हुआ, रिलैक्स हुए, तो कहा लाओ वो कुरान की पंक्तियां मुझे दिखाओ, वो कुरान की आयत मुझे दिखाओ। और फिर जब आपने गुस्ल करके उन आयत को पढ़ा, तो आप तो अरब थे ना, अरबी जानते थे। जब कुरान को पढ़ा तो वो उमर जिसका दिल सख्त था, जिसका दिल कड़क था, जो डॉन हुआ करता था, आज उस डॉन का दिल बसीज गया है, आज उस डॉन का दिल पिघल गया है। अल्लाह की आयत को पढ़ करके डर गए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आंखों से आंसू जारी हो गए। अपनी बहन से कहा मुझे उस नबी की बारगाह में ले चलो जिनके रब का ये कलाम है, अल्लाह अकबर, जिसके रब के कलाम का ये आलम है, उसके नबी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, नबी की बारगाह में पहुंचे। सहाबा किराम ने कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। डॉन तो थे ना, चलने की स्टाइल वो थी। अल्लाह अकबर, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर उमर कोई गलत इरादे से आ रहा है तो हम उसे वहीं पर रोक देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा रुको। अल्लाह के नबी ने कहा है सहाबा रुक जाओ, अगर उमर कोई गलत से इरादे से आ रहा है तो भी देख लेंगे, अच्छे इरादे से आ रहा है तो भी देख लेंगे। चुनांचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में आए तो कदम मुबारक में गिर गए और कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, मुझ गुनहगार को अपने रब से माफी दिलाइए और कलमा पढ़ा के दीन इस्लाम में दाखिल कीजिए। अल्लाह के नबी ने कलमा पढ़ाया, उमर दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। देखा आपने, अल्लाह ने कहा था उमर तू तो कहता है 40 मुसलमान नहीं होने देंगे, हम 40 का अदद पूरा ही तेरे से करेंगे, हम 40 का अदद पूरा ही तुझसे करेंगे। चुनांचा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए, मुसलमान बन गए। अब 40 मुसलमान हो गए। आगे सुनिए, 40 मुसलमान जब बने, 39 थे तब तकलीफ में थे, छुप छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, दीन की तबलीग में परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब 40 मुकम्मल हो गए। तो अब देखिए अल्लाह अकबर, हजरत उमर ने देखा कि मुसलमान नमाज छुप छुप के पढ़ रहे हैं, दीन की तबलीग छुप छुप कर रहे हैं। कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपको किस बात का डर है, आप आलल ऐलान नमाज क्यों नहीं पढ़ते, अज़ान बुलंद आवाज में क्यों नहीं देते, या हबीबी या रसूल अल्लाह, दीन का काम खुल के क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए उमर, अभी हमारी तादाद कम है और कुफार हर तरफ से हम पर हमलावर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे इस काम को बढ़ाया जाए। हजरत उमर ने कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, जब उमर आपके साथ है तो फिर घबराना क्या है। हजरत उमर ने कहा चलो सब खाने काबा में पहुंचे और खाने काबा में एक बुलंद जगह खड़े होकर हजरत उमर ने अपनी तलवार को यूं लहराया और लोगों से कहा ए कुफारे मक्का सुन लो, मैं उमर बिन खत्ताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान ले आया हूँ, मैं उस रब को मान चुका हूँ जिसके नबी मोहम्मद अरबी है। ए कुफारे मक्का सुन लो, उमर मुसलमान हो गया है, अब जिसे अपनी बीवियों को बेवा करना हो वो उमर के सामने आ जाए, अब जिसे अपने बच्चों को यतीम करना हो वो उमर की तलवार का सामना करे। अब पूरा मक्का डर गया, क्योंकि कल तक पूरे मुसलमान, पूरा मक्का जिस उमर के नाम से डरा करते थे, आज वो उमर ईमान ले आया है, इसलिए काफिरों के हथियार पड़ गए, काफिरों के हिम्मत और हौसले खत्म हो गए। अब खुल करके अजानें हो रही है, अब खुल करके नमाजें पढ़ी जा रही है, अब खुल करके दीन की तबलीग की जा रही है। उमर ने कहा या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ जो बढ़ेगा वो पहले उमर से मुकाबला करेगा। अब उमर चूंकि मक्का के डॉन थे, अल्लाह अकबर, और आपका कद और काठी और आपका जलाल ऐसा था कि लोग आपको देख करके डर जाया करते थे। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि उमर वो शख्सियत है कि जिस गली से निकलता है इंसान तो इंसान, शैतान भी उमर को देख करके डर जाता है, भाग जाता है, अपना रास्ता बदल लेता है। तो अब 40 का अदद तमाम होते ही मुसलमान खुल करके सामने आ रहे हैं, अब अज़ानें दी जा रही है, अब नमाजें पढ़ी जा रही है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपने देखा कि हर जगह 40 का अदद हमारे साथ चल रहा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदारा ऐसा ना करें और अपने मुर्दों के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें। हम ये नहीं कहते, ये बताने वालों की कमी है। बताने वालों ने आपको ये बता दिया कि 40 दिन बैठना पड़ेगा। किस हदीस में लिखा है? किसने कहा कि 40 दिन बैठना पड़ेगा? 40 दिन बैठने का हुक्म नहीं है, बैठने का हुक्म सिर्फ 3 दिन है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों, 40 दिन तक कम से कम आप अपने मरने वाले को याद रखें। 40 दिन तक उसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब किया जाए और 40वां दिन जब हो जाए, जब आप उसकी फातिहा खानी करें, तो उस दिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला मुर्दे की हालत को तब्दील करता है, तो उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें। हमारे मुआशरे के अंदर ये गलतफहमी फैल गई कि बस 40वें का मतलब ये हो गया कि बकरे काटे जाए, बड़ी बड़ी दावतें की जाए, बड़े बड़े लोगों को जमा किया जाए। नहीं, तरीका यह है कि सबसे पहले अल्लाह रसूल का जिक्र करवाया जाए और गुरबा, मिस्कीन को, गरीबों
को, यतीमों को बुलाया जाए, क्योंकि खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। जब अल्लाह तबारक व तआला देखेगा मेरा बंदा मेरे मरहूम बंदे के नाम पर गरीबों को खाना खिला रहा है, उनके पेट को शिकम शेर कर रहा है, अल्लाह अकबर, जब गरीब खाना खाता है उसका पेट भर जाता है तो उसके मुंह से दुआ निकलती है, तो क्या पता अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के सदके में उस मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। तो तरीका ये होना चाहिए कि 40 दिन मुकम्मल होने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा 41वें दिन बड़ा प्रोग्राम रखें, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इसाले सवाब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़वाएं, ज्यादा से ज्यादा आयत करीमा तिलावत करवाएं और ज्यादा से ज्यादा मरहूम को इसाले सवाब करें और ज्यादा से ज्यादा गरीबों, मिस्किनों, यतीमों को खाना खिलाएं। ये सबसे बड़ा सवाब है। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि आप 40वां करें, बकरा लगाएं और लोगों को दावतें दें, ये नहीं है। गुरबा मसाकीन का हक है और ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब किया जाए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप भले ही 40 को छोड़ दें, 40 की आदत ने हमको नहीं छोड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब कदीर हमें अपने मरहूमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए।